चेयरमैन ऑफ जेटीएफ सिर्फ नाम ही काफी है. Very positive and dynamic chairman, draws vision for the team and give free hand to the team to execute. Courage, smile, his boldness is his strength. Very helpful to everyone. गुरु भगवंतों का चहेते, उन पर हमेशा विशेष आशीर्वाद रहता है. मैं पृथ्वीराज जी साहब अपने चेयरमैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको वेलकम करें अपने वेलकम स्पीच द्वारा. और पृथ्वीराज साहब. सभी को सादर जय जिनेंद्र. Good morning to all of you. Today, on the occasion of the e-launch of JTF's e-Swadhyay, I welcome Sri Pradeep Ji Rathod, Chairman Jito Apex, Sri Ganpat Raj Ji Chaudhary, President Jito Apex, Sri Narendra Ji Baldota, ex-Chairman Jito Apex, Sri Tejraj Ji Gulesa, ex-Chairman Jito Apex, and Sri Subhash Chandra Ji Nunwal, ex-Chairman JTF, for this East Swadhyay. I also welcome Sri Ranjan Jain Ji, retired IRTS officer, Sri Rajiv Jain, retired IPS officer and ex-director of Intelligence Bureau, Sri DC Jain Sahab, additional director CBI, Sri Parag Jain Sahab, IS officer secretary, Textile Department, Government of Maharashtra, Sri Raja Bhatia Ji, IPS officer, West Kameng District, Arunachal Pradesh, and Dr. Tanu Jain, Assistant Director, Raksha Mantri Office, Ministry of Defence. For last 10 years, JTF is guiding the UPSC aspirants to achieve their dreams. Till date, JTF's 196 candidates are selected in Union Public Services and 272 candidates are selected in State Public Services. Today, taking a big leap ahead into coaching and guiding the UPSC candidates online by launching eSwadhyay. This is an online UPSC coaching facility. With this initiative facility, we expect around 1,500 to 2,000 UPSC aspirants to get benefit immediately. Our efforts would be to get best of the best resources for coaching, guiding the young aspirants, and we have full confidence that they will make the best use of it. I also extended my warm greetings to all the Jito and JTF trustees, officers, and UPSC aspirants. Thank you and Jai Jinendra. Now I request Vinod ji कि प्रोग्राम की रूपरेखा आगे करें. थैंक यू थेरी वंकरन. एक बार सभी को जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र. जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे आए हुए हैं, more than 375, सबको मेरी तरफ से जय जिनेंद्र. Thank you, Chairman Sahab. As your mission was there to make the study available for everyone, things is on the platform. Henceforth, we'll inaugurate and everybody will know how and what we did under your leadership. Friends, पूरे जीतो की शान, जेटीएफ की शान, उनकी पहचान सिर्फ उनके व्यापारिक सक्सेस से नहीं होती है. उनका विजन हम सभी जेटीएफ वालों को पता है. आज दिल्ली का जो हॉस्टल है इस बात को विटनेस करता है कि उनकी सोच कितनी दूरदर्शी है. मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री सुभाष जी रुनवाल साहब, जिनको सब प्यार से भाव कहते हैं, कि अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को टच करके ई स्वाध्याय का लोगो अनवील करे और हमें आशीर्वाद रूपी कुछ शब्द बोले.
Subhaji Runwas, uncle, please bless us with your kind words, please. आप सभी को जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी और सभी को सादर प्रणाम। JTF is a dream project of Jito. पूरे education in the entire education field, JTF is doing progress. The dream of JTF is to have around 500 UPSC officer, IAS, IPS, IRS within a short time. And under the able leadership of all JTF trustees and office bearer, now Prithviraj ji, JB Jain, Pawan Jain, and dear Vinod Dugar. My heartiest congratulations to the entire team for launching these online courses, because in view of the situation prevailing today in the country, physical classes cannot be done. I am positive and very sure that this moment will enrich all the students who join these coaching classes and come out with a grand success in coming year and coming exams. I wish them all the best. And again, I am thankful to Vinod Dugar. He personally called me and said, "Ki, uncle, aapko aana padega." I was out of Bombay, but I came only for this program. Thank you very much. Wish all the success to this program, and JTF will again shine at every level in education, and whatever the activities they conduct, I have full support and blessing. Again, Jai Jinendra, Sadhar Pranam. Thank you. Thank you, Subhash uncle. We always know that your blessings and you personally are available for whole JTF and Jito family, and we are truly touched with that. Uncle, the mission and vision what you started and thought of today under the leadership of Prithviraj ji Sahab, it is turning out true. Now, I want to call upon a person who has got tremendous courage, his truthfulness, his power to fight for right things. He will I'll request Narendra uncle to touch his screen and unveil the studio and give the blessings to everybody, please. Sadhar Jai Jinendra. Welcome to eSwadhyay online classroom studio. Here, this is the exterior section of the studio. This one is internet connection with 5G technology, and it is fitted with the fiber technology. Here we'll have a small power backup for the studio. Now we enter into the real section of the studio. This one is the rostrum for the teacher. This is the smart board which has got all kind of facility. It has interactive whiteboard as well as computer fitted in it, so that it could provide one-stop solution for the teacher as well as students. It is fitted with all kind of information technology system. Next, this one is the Chroma screen, which will give a look of virtual reality, and thereafter we see this one is the section where there will be editing for the video recorded for the class, and after the class is recorded, it will be given external kind of feel so that it is more attractive. This screen is called chat screen. Whatever questions are being asked by the student, that will be visible here. And this one is our camera that will be recording the class and which will be webcast live. The whole classroom is
soundproof. It will give the real feel of the studio which we see elsewhere. It is fitted with all kind of technology to give a better experience to a student as well as teachers. Thank you. Narendra uncle, kindly give the blessing words, please. Sadhar Jai Jinendra to all. I am very much thankful to JATF for giving me this opportunity to participate in Swadhyaya virtual inauguration. First, let me tell you about the journey of JATF. JATF started in 2007 with the goal to create a pool of young, ignited, honest, and talented officers to provide excellence in governance and ethical values. JATF is presently working on 6 projects. PACE. Under this, we are providing coaching, mentoring, lodging, and boarding facility to young and bright minds from our community at Delhi, Jaipur, Pune, and Indore. With God's grace, till now, 195 successful candidates have joined prestigious services like IAS, IFS, IPS, IRS, including others. 497 candidates have joined state services. BEAT. Under this, we are providing training to become bank manager in government and private banks. Pune Center has capacity of 40 students and Jaipur Center has capacity of 22 students. Judiciary. We have started judiciary training in 2018 and presently we have given admission to 16 students. IIT Center in Kota to provide a home environment to young and flourishing minds in IIT Coaching Hub Kota. JATF started Kota Center with capacity to accommodate 75 students. Along with these projects, though projects like JELP and SEED, JATF is providing interest-free subsidy on education loan and to deserving and needy students. And today, we are adding another feather in JATF cap. Through eSwadhyaya project and its studio, which we have seen just now, JATF will reach to thousands of UPSC aspirants who cannot come to Delhi due to financial and personal reasons. This studio will act as Bhagirath to these students by bringing knowledge of UPSC preparations to their doorstep. I am very pleased to announce the opening of Studio eSwadhyaya virtually. This eSwadhyaya platform will surely help UPSC aspirants to crack this exam, and they will definitely serve our country and community in an efficient and effective way. I congratulate JATF Chairman Shri Prithvirajji Kothari, JATF President Shri J.B. Jain, Secretary Shri Pawanji Jain, Shri Vinod Duggar for their efforts in conceiving and executing idea of eSwadhyaya. This is something unusual and new thing. I am very happy that this is going to come and this will have lot of benefits to all.
I wish you all the best success for this project. Thank you. Jai Jinendra. Thank you, Balduta uncle. Your blessings and your guidance we will cherish forever. Friends, now समाज के लिए जीना किसी से सीखना हो तो इनसे सीखें. मैं अब किसको बुला रहा हूं आप सब समझ गए होंगे. वो शख्स जो पद बेगर पद निष्ठा से सेवा भाव से हर लोगों की सेवा करते हैं. 24/7 वो लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं. जिस आदमी को पद से कोई मोह माया नहीं है, वो पद के ऊपर सोचने वाले शख्स और आदरणीय श्री तेजराज जी गुलेचा साहब, एक्स जीतो चेयरमैन, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो डिजिटल टूल को इनॉग्रेट पहले टच स्क्रीन देके करें, फिर आशीर्वाद रूपी वचन हम लोग सबको दें. वाह, JTF टीम, क्या कमाल है आपका इस कोविड काल में. जय जिनेंद्र सबको. प्राचीन काल में हम जैनों को महाजन कहते थे और आज ये समय हमारे JTF के सभी पैटर्न्स के सहयोग से, ऑफिस बेयरर्स की मदद से और हमारे मेंटर्स के पूर्णकालीन समय देने के सहयोग के हिसाब से आज वापिस हम जैन समाज इस महाजन कहलाने के योग्य होते जा रहे हैं. आज जो अपने सेंटर से जितने ऑफिसर बने हैं और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि कम से कम इस 10 साल में 400 से 500 के बीच में जिस दिन ऑफिसर बन जाएंगे, शायद पूरे राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा पूर्ण रूप से हम लोग जो कर रहे थे करते रहेंगे. और आज ये अवसर इस कोविड काल ने हमको सिखाया है और इस ई स्वाध्याय वर्चुअल डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास में कैपेसिटी बहुत लिमिट में है, हम उसको सबको पूरी जगह में भर्ती नहीं कर सकते हैं, पर इसके माध्यम से हम हमारे जैन समाज के हजारों बच्चों को शिक्षित करेंगे और आने वाले समय में इससे समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा. धन्य है आज हमारे ऑफिस बेयरर, उनका अभिवादन. अपने पूरे समाज की जो सोच है उसको आगे रखी. मैं एक बार और आप सबका अभिनंदन और बधाई देता हूं कि ये वर्चुअल प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हो गए, जैन समाज के बहुत इसके बच्चे लाभान्वित हो गए. धन्यवाद. जय जिनेंद्र. थैंक यू तेजराज अंकल. आप लोग स्तंभ हैं, आप लोग पिलर हैं. आप लोग के मार्गदर्शन और जो पाथ बनाए हैं हम लोग सब उसी में चल रहे हैं, उसकी राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं. डियर ऑल, लेट मी इनवाइट ए फादर फेस ऑफ JTF फैमिली. सोते उठते हर समय JTF और उनके स्टूडेंट्स के बारे में सोचते रहने वाले, उनके लिए अपने दिल में अलग स्थान रखने वाले, अपने स्टूडेंट्स के बारे में बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट फैसिलिटीज पहुंचाने की सोच रखने वाले,
स्टूडेंट्स आज जिस कभी भी पोजीशन में पहुंच गए, बड़े अफसर बन गए, फिर भी उनको प्यार से बच्चा कह के बुलाने वाले आज जेटीएफ के अनडिस्प्यूटेड कमिटेड वर्कर, आज उनका 74th बर्थडे भी है। मैं आप सबको मेरी तरफ और आप सबकी तरफ से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। हैप्पी और बर्थडे। दीर्घायु की कामना करता हूं। आवर ओन डियरेस्ट प्रेसिडेंट श्री जेबी जैन साहब, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो जेटीएफ और ई स्वाध्याय के बारे में कुछ शब्द कहें। जेबी जैन साहब। जय जिनेंद्र। विनोद, मेरी आवाज क्लियर है? परफेक्ट। गुड। सादर जय जिनेंद्र। उपस्थित गणमान्य जन, ऑफिसर्स, जेटीएफ ट्रस्टीज, जेटीएफ मेंबर्स और विद्यार्थियों का इस बेला पर स्वागत है। मुझे आज इस मंच पर आप सबको देखकर गर्व का अनुभव हो रहा है। मैं संबोधन इन पदों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ज्ञान से जो मूर्ति गढ़ी जाती है, ज्ञान से जो मूर्ति गढ़ी जाती है, वह पूरी दुनिया में पूजी जाती है। इस कथन के आधार मानकर हमने आज से लगभग 13 साल पहले जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन जेटीएफ की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य सेवा, शिक्षा, ज्ञान के साथ साथ समाज की आर्थिक संपन्नता, समाज कल्याण, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करना था। इस संस्था ने गत वर्षों में आप सबके मार्गदर्शन से अपना एक मुकाम हासिल किया है। जीतो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन जेटीएफ ने समाज के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग एवं जुडिशरी के लिए देश में 4 स्थानों पर सेंटर चलाकर निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इसी के साथ कई स्कॉलरशिप, इंटरेस्ट एजुकेशन लोन और इंटरेस्ट सब्सिडी का वितरण किया है। जेटीएफ के माध्यम से निकलने वाले ईमानदार एवं प्रतिभावान नौजवान सरकारी सेवाओं में प्रवेश कर अहिंसा एवं शांति की भावना के साथ मानवता, भाईचारे एवं समाज के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जेटीएफ का यूपीएससी रिजल्ट 2019 अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है। जेटीएफ ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक यूपीएससी में 196, स्टेट पीएससी में 272 ऑफिसर्स बनाए हैं। बैंकिंग सर्विस में हमारे 123 छात्रों को गत 3 वर्षों में चयन हुआ है। आपको कर यह प्रसन्नता होगी कि लगातार दूसरी बार जेटीएफ के स्टूडेंट्स ने यूपीएससी के 25 में से 7 स्थान प्राप्त किए हैं। हमारा यह सतत प्रयास रहा है कि समाज की कोई प्रतिभा सिर्फ आर्थिक तंगी की वजह से अपना मुकाम पाने में वंचित न रह जाए। यूपीएससी की तैयारी के लिए अधिकांश छात्राएं बेहतर गाइडेंस के लिए दिल्ली आते हैं, परंतु आसमान छूती प्राइवेट कोचिंग की फीस एवं दिल्ली में रहने का खर्चा बहुत बार आम आदमी का मनोबल गिरा देता है। कई ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने दिल्ली में तैयारी करने के लिए अपनी नौकरी का त्याग करना पड़ता है, और यह मेरे मन की पीड़ा थी कि कोई प्रतिभा आर्थिक तंगी या सुविधाओं के अभाव से
अपना दम ना तोड़ दे। कोरोना काल में डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। आज कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में जब क्लासों में स्टडी संभव नहीं है, तब हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को मन में उतारा और कोविड-19 टाइम का सदुपयोग करने के लिए हम डिजिटल शिक्षा प्रयोग में लेते हुए बच्चों को कंपटीशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया। आज के युग में डिजिटल शिक्षा के महत्व से हम सब भली भांति परिचित है। डिजिटल शिक्षा की इस क्रांति में मैं एक कड़ी और जोड़ने के लिए आज हम और आप यहाँ उपस्थित है। हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वाध्याय लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत सभी बच्चों को यूपीएससी की तैयारी निःशुल्क कराई जाएगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारा एक सपना था, कैच देम यंग, यह भी पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन तैयारी कराने हेतु हमने स्वाध्याय का एक डिजिटल स्टूडियो दिल्ली सेंटर में खोला है, जिसमें दिल्ली की यूपीएससी कोचिंग के नामी गिरामी फैकल्टीज का लेक्चर पूरे देश में हमारे स्वाध्याय ऐप के माध्यम से एक साथ लाइव टेलीकास्ट कराया जाएगा तथा ऐप के माध्यम से ही हम मुफ्त में टेस्ट एवं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। यह अपने आप में इतने बड़े स्तर पर देश का पहला अनूठा प्रयोग होगा। इसके लिए मैं ई स्वाध्याय की कोर टीम के सदस्य नेहा जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर रक्षा मंत्रालय, सौरभ जैन, असिस्टेंट डायरेक्टर इनकम टैक्स सिस्टम, प्रियंक जैन, असिस्टेंट कमिश्नर IRS इनकम टैक्स का धन्यवाद करता हूं कि इसी के साथ JTF दिल्ली सेंटर के मैनेजर अनिल जैन और उसके साथी मनीष जैन और सौरभ जैन का भी धन्यवाद करता हूं। यह टीम पिछले 3 महीने से इस सपने को साकार करने में दिन रात जुटी हुई थी। कोरोना काल के दौरान JTF की एक और उपलब्धि को मैं आपके सामने कुछ शब्दों में बयां करना चाहता हूं। हाल ही में हमने एक और नए अध्याय JTF ADR और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की स्थापना की है। JTF द्वारा ADR प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य न्यायालयों के बाहर विवाद को प्रचलित कानूनों के अनुसार विवाद समाधान हेतु एक सरल एवं सुगम मंच प्रदान करना है। इस प्रथम पहल रूप में ऑनलाइन मध्यस्थता शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ मध्यस्थों के रूप में पूर्व न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हर समय लबों पर खुदा का नाम आए। वो लम्हा ही इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। इन पंक्तियों के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करना चाहूंगा तथा सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे सुन और कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए मैं विनोद जी से विनती करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू जेबी अंकल। साथियों, अब मैं बैकबोन ऑफ JTF रिफॉर्मिंग, उनके एडमिशन, सिलेक्शन, सिस्टम, प्रोसीडियर, जिन्होंने हर चीज को सुचारू रूप से गाइडेंस दिया है, वो मेंटर ही नहीं है, वो गार्जियन भी है हर स्टूडेंट्स का। ही इज ब्रिज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड एडमिन पीपल। उनकी डेडिकेशन का क्या कहना। 40 किलोमीटर दिल्ली में
वो डेली ट्रेवल करके सेंटर आते हैं। जब भी कोई समस्या कोई स्टूडेंट्स की होती है, कोई भी उनको मार्गदर्शन चाहिए होता है, तो दैट पर्सन कम्स अनकंडीशनली। हर आदमी को अपना पर्सनल टच देते हैं। बहुत सारे सिलेक्टेड ऑफिसर्स जिन्होंने मुझे पर्सनली ये कहा कि आज बिकॉज ऑफ हिम उनकी जो भी कमियां होती है, कोई भी कहीं भी बिंदु में उनको शंका होती है, वो निस्वार्थ खड़े रहते हैं गाइडेंस देने के लिए। आज उनके कारण सैकड़ों स्टूडेंट देश की सेवा में लग गए हैं ऑफिसर्स बन के। ही इज पर्सन बिहाइंड द JTF एक्सीलेंस रिजल्ट, आवर डियरेस्ट ओन श्री रंजन सर। मे आई वेलकम रंजन सर टू गिव हिज स्पीच प्लीज। थैंक यू विनोद जी। मैं JTF के सभी ट्रस्टीज और मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है आज। ये एक इतना लंबा रास्ता पैदा करेगा लोगों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि हमारी जो अभी सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। ये पहली बार होगा कि इतनी हाई क्वालिटी कोचिंग UPSC एस्पिरेंट्स के डोर स्टेप पे मिलेगी। जैसा पहले लोगों ने कहा कि हर एक के लिए संभव नहीं है कि वो दिल्ली आ सके और दिल्ली में कोचिंग कर सके, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। तो ये बिल्कुल फ्री कोचिंग जिसमें कि एक हाई क्वालिटी के फैकल्टी होगी, लाइव ट्रांसमिशन होगा और आपको अपने जितने भी डाउट्स हैं क्लैरिफाई करने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है JTF की जर्नी में। JTF जैसे आप सबको पता है एक बड़ी छोटी सी बिगिनिंग हुई थी 2007 में, केवल 35 की कैपेसिटी थी हॉस्टल की। जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे डिमांड बढ़ी, हॉस्टल बदले गए। आज जो हॉस्टल है जिसमें हम लोग हैं उसमें 300 की कैपेसिटी है और ये भी पूरी भरी हुई है और भी डिमांड है। तो ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है, मैं समझता हूँ कि इस स्वाध्याय से ये ब्रिज होगा और ज़्यादा लोगों को हम लोग सहायता कर पाएंगे UPSC की तैयारी में। JTF ने ये फैसला किया कि हम बेस्ट ऑफ फैकल्टी रोपिन करेंगे और मुझे ऐसा विश्वास है कि धीरे धीरे करके वी विल माइग्रेट टू रजीम जहाँ पर कि हम बाहर की कोचिंग पे डिपेंड ना करके अपनी कोचिंग ही करेंगे, अपने यहाँ पे इंटरनल कोचिंग इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये सेल्फ सफिशिएंट सेंटर बन जाएगा। मैं जितने भी हमारे सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं जो कि जब भी उनसे कहा गया तभी सेंटर पे आके वो मेंटरिंग करते हैं, गाइडेंस देते हैं और सब तरह की हेल्प करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई फुल्ली रिकॉग्नाइज वन फैक्ट कि जो ये रिजल्ट आ रहा है इसका मेन जो भागीदार है वो स्टूडेंट्स हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लगन से पढ़ाई कर रहे हैं जो कि रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है और हम लोग तो केवल एक जरिया है, असली हकदार उस सक्सेस के वही है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आगे भी हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं और समाज को मजबूत करें। धन्यवाद। थैंक यू रंजन सर। आपने जो फाउंडेशन रखा है उसी से ये रिजल्ट आ रहे हैं और खुशी की बात यही है आपके ही तैयार किए हुए लोग इनको सहयोग देके ये जो आपका मिशन है, JTF पैटर्न्स का जो मिशन है, उसको अकम्प्लिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, person who always guided JTF, he is personally there for all kind of mock interviews. JTF students, after joining civil services, needed any guidance, his doors are always open. He has served the highest post in civil services as a German community. इनके बारे में जितनी बात कही जाए उतनी कम है। वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, हर टॉपिक में उनकी पकड़ और नॉलेज बहुत ज्यादा है।
इतनी बड़ी पोजीशन में होकर भी हमेशा बहुत हम्बल व्यवहार रखना फिलॉसफी एंड साइंस का उत्कृष्ट मिशन है। श्री राजीव जैन सर, मैं उनसे विनती करूंगा कि हम लोग का सबका मार्गदर्शन बढ़ाए। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भी एक आंशिक रूप से जेटीएफ के साथ संबंधित हूं और आप सब बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं कि पिछले कुछ सालों में आपने इतना कुछ संभव कर लिया। और जैसा कि जेटीएफ प्रेसिडेंट ने कहा, कैच देम यंग, आपने युवा पीढ़ी को एक नई दिशा दिखाई है, उनको साधन दिए हैं जिससे कि वे अपने स्वप्नों को साकार कर सकें। और अब ये जो नया प्रयास है, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडियो आपने बनाया है जिससे अन्य समुदाय के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, आप वाकई प्रशंसा के पात्र हैं। मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और मेरे लायक अगर कुछ सेवा हो सके तो मुझे बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू राजीव जैन सर। आपका मार्गदर्शन और आपका गाइडेंस हमेशा ही चाहिएगा, जैसे आप देते हैं, आगे भी हमें उनकी जरूरत पड़ती रहेगी। अब मैं उस सक्सेस को बुलाना चाहता हूं जिसके काम सारी जैन कम्युनिटी के, जिसके कारण उनका नाम रोशन होता है। ही इज इन्वॉल्व्ड with all kind of guidance and mentorship in each and every program of JTF, who has played a very important role to lay a strong foundation in JTF. हमेशा सबकी मदद करने में आगे रहने वाले, और सबसे बड़ी खूबी है he is very approachable. कभी भी इनसे बात करते हुए ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं। बहुत ही मधुर व्यवहार के व्यक्तित्व और आदरणीय श्री डीसी जैन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अपनी ओर से जीटो एवं जेटीएफ के चेयरपर्सन्स और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये जो नया इनिशिएटिव ई स्वाध्याय का प्रारंभ किया है जीटो और जेटीएफ ने मिलकर, उसके लिए देना चाहूँगा। जैसा अभी रंजन जैन साहब बता रहे थे, मैं भी उन चंद भाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ जो इस जेटीएफ के इनिशिएटिव से वर्ष 2007 से ही जुड़ा और लगातार इसमें किसी न किसी रूप में सक्रिय रहने का मुझे अवसर प्राप्त होता रहा। ये हम सब के लिए वाकई अत्यंत गौरव और हर्ष का विषय है कि जो हमने एक छोटा पौधा उस समय रोपित किया था सभी ने मिल करके, वो आज एक अच्छे खासे वृक्ष का रूप ले चुका है। और उसमें एक नया मील का पत्थर आज जो है आपने इस ई स्वाध्याय के माध्यम से रखा है। ये अच्छी बात है कि हर एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ये इसका जीवंत उदाहरण है। कोरोना ने हम सब के जीवन को उथल पुथल कर दिया। हमारा जो नॉर्मल दैनिक कार्यक्रम था, कोचिंग चलाने का, बच्चों को गाइड करने का, वो सारा गड़बड़ हो गया। तो उसको आपने बल्कि उससे बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके जिस प्रकार से आज भी कार्यक्रम आप लॉन्च कर रहे हैं, तो इसकी जितनी तारीफ की जाए बहुत ही कम है। अधिक समय न लेते हुए मैं पर्टिकुलरली इस कार्यक्रम से जुड़े यंग ऑफिसर्स को, जो हमारे खुद जेटीएफ के माध्यम से जो फील्ड में निकले ऑफिसर जो यूपीएससी में सफल हुए, उनका जो सहयोग और वो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने निश्चित रूप से इसमें इनिशिएटिव लिया है, गाइडेंस दी है और जेटीएफ के साथ मिलकर के इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि ये जो ई प्लेटफॉर्म है, जिसमें न केवल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह दी जाएंगी, बल्कि एक तो जैसा अभी बताया गया है कि इसकी आउटरीच बहुत ज्यादा होगी और वो पार्टिसिपेंट्स, एस्पिरेंट्स जो आ नहीं पाते थे किसी कारणवश दिल्ली या अन्य सेंटर्स तक पहुंच नहीं पाते थे, वो भी इसका पूरा लाभ उठाएंगे। जो उत्तरदायित्व लिया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें न केवल कम्युनिटी कोचिंग कराई जाएगी, मतलब सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जाएगा, बल्कि इंडिविजुअली भी हर एस्पिरेंट को मेरे ख्याल से इसमें एक महत्ता दी जाएगी। उसका स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस क्या है, उसका एनालिसिस और उसको क्या दिक्कत है। 1-to-1 इंटरेक्शन होना सिविल सर्विसेज के आगे जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने मतलब उस पर्टिकुलर कैंडिडेट की कॉपियां जांचना, उसको बताना कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ वो और अच्छा कर सकता है। जब तक उसको 1-to-1 अटेंशन हम नहीं देंगे
तब तक उस कैंडिडेट की सफलता को हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की विशेषता होती है कि वो कई प्रकार से हर व्यक्ति को हर प्रकार की गाइडेंस दे पाते हैं। तो मैं पुनः आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे, चूंकि आप लोगों को शायद पता ही होगा, अभी हाल ही में मैंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया है। मैं पहले मुंबई था, अब मैं दिल्ली आ गया हूं, मेरी पोस्टिंग यहाँ हो गई है। तो मैं अगर किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से अगर आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी साबित हो पाया और इस कार्यक्रम में कोई सहयोग दे पाया, तो वो मेरा सौभाग्य होगा और उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। और आगे एक बार पुनः सभी प्रतिभागियों को जो इसका लाभ उठाने जा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना, और इस इनिशिएटिव को से जुड़े सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, धन्यवाद, जय जिनेंद्र। थैंक यू जैन साहब। आप लोग ने जो सबको जो मार्गदर्शन दिया था, पहले तो आप लोग, अब सारे स्टूडेंट जो अब अफसर बन गए हैं वो भी इस काम में जुड़ गए हैं ये मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग पढ़ सके, अधिक से अधिक लोग देश और कम्युनिटी की सेवा कर सके। धन्यवाद जैन साहब। और हम लोग को ये जान के बहुत खुशी हो गई कि आप दिल्ली आ गए। अब हम और रेगुलर आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, आपसे गाइडेंस और मार्गदर्शन लेते रहेंगे। अब मैं टीम से विनती करूंगा कि 1 मिनट का आशीर्वाद वचन मंत्री जी का हमें दिखाया जाए टीवी में, प्लीज, स्क्रीन पे। वॉइस। तो आपको तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराते हैं, सिविल सेवा की तैयारी कराते हैं। मैं सबसे पहले तो इस संस्थान के सभी अध्यक्ष और सभी सदस्यगण और जो तमाम लोग इनसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं इस बात के लिए शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि 2008 से आप लोग प्रतिभाशाली छात्रों को चुन करके उनको तैयार करते हैं, सिविल सेवा के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि तमाम देश के लिए सिविल सेवा में तैयार होकर के आने वाले जो युवा हैं, युवतियां हैं, वो छात्र छात्र हैं, देश के निर्माण की दिशा में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और ये स्वयं आपने इस मिशन को चुना है और निःशुल्क तरीके से आप इस पीढ़ी के निर्माण में इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं युवाओं को, प्रतिभाशाली छात्रों को। मैं इसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। मुझे बताया गया कि जहाँ इस संस्था में तमाम प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी लोग, विशेषज्ञ लोग, प्रशासनिक क्षेत्र के लोग जुड़े हुए हैं। ये एक मिशन बोर्ड में जुनूनी भाव के साथ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में ये आप लोगों का जो मिशन है ये निश्चित रूप में एक स्वागत योग्य है। और आज जिस तरीके से आप एक ऑनलाइन पोर्टल आज लॉन्च कर रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आपके ऑनलाइन इस पोर्टल पर इन परिस्थितियों में वो छात्र और छात्र हैं जिनको और कोई सुविधा इन परिस्थितियों में अभी तैयारी के लिए नहीं मिल पा रही हैं, वो आपके इस पोर्टल से, जो ऑनलाइन पोर्टल आज शुरू हो रहा है, इससे उनको बहुत ताकत मिलेगी, बल मिलेगा और वो अपने भविष्य को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकेंगे। मुझे ये भी बताया गया कि इस संस्था के द्वारा तैयार किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा की दिशा में एक लंबी श्रृंखला है जिसमें बहुत सारे छात्र और छात्राएं भारतीय प्रशासनिक सेवा में निकले हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्तमान में कार्यरत भी बहुत सारे अधिकारी इस मिशन के साथ जुड़े हैं। मैं उनको भी शुभकामना देना चाहता हूं कि वो नई पीढ़ी को नए विजन और नए मिशन के साथ नए भारत के निर्माण की दिशा में, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री एक स्वर्णिम भारत की जो उनकी संकल्पना है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, श्रेष्ठ भारत और एक भारत, जो ऐसे 21वीं सदी का जो स्वर्णिम भारत होगा, उस स्वर्णिम भारत की दिशा में जिस तरीके से हम अभी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाए हैं, उसी स्वर्णिम भारत के आधारशिला के रूप में जहाँ नई शिक्षा नीति काम करेगी, वहाँ उस नई शिक्षा नीति को भी ताकत देते हुए आपका जो ये मिशन है, जो प्रतिभाशाली छात्रों को तैयार करने का, उस मिशन में आप सफल हों। मेरी आप सबको और छात्रों को भी, उनके अभिभावकों को भी और इस मिशन से जुड़े सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ।
अब मैं नेहा जी को बुलाना चाहता हूं, द पर्सन who made herself available for all the noble cause, and she is leading from the front in this project. बहुत ही एनर्जेटिक और हमेशा काम करने के लिए उत्साहित रहती है, उससे इंटरेक्ट करने से मोटिवेशन मिलता है, गजब की शैली, गजब सी कन्विंसिंग पावर, कोई भी उससे जीत नहीं सकता है. आवर ओन डियरेस्ट नेहा जी. थैंक यू सो मच सर. जय जिनेंद्र सभी को मेरी तरफ से, और थैंक यू सो मच कि आप इस लॉन्च पे आए. पिछले 3 महीने पहले जेवी सर ने एक दिन कॉल किया और कहा कि भाई ऐसा सोच रहे हैं कि हम JTF हॉस्टल के माध्यम से सिर्फ 200-250 बच्चों तक पहुंच पाते हैं, तो क्यों ना कम्युनिटी के सारे बच्चों तक पूरे देश में पहुंचा जाए. एंड आई रियली अप्रिशिएटेड दिस थॉट. बट जब उन्होंने टाइमलाइन दिया कि 3 महीने में ये काम करना है, so it really first we found it impossible, but then with the coordinated effort, today we are at the launch. So I have just prepared a kind of presentation to thank each and every team member who have supported us in this. So I would like everyone to please meet our team. So this is the core team. I was made overall in charge. Thank you, Divijan sir, for putting so much faith in me. So I was responsible for coordination, ensuring each and everything goes as required. And secondly, Saurabh sir, who is already an income tax department assistant director, income tax systems officer. He was the backbone, key technology expert and platform setting up. So there were days in 1 or 2 weeks in between when I and Saurabh ji were for like 3 to 4 hours every day was just taking the demos of various platforms. And those were really amazing days. And शुरुआत में बालदत्ता सर ने एक बात कही थी कि it's very unusual and unprecedented. So sir, absolutely I would agree that catering 1,000 students or more than 1,000 students online in one go is really something we have not heard in the coaching class setup. So we have Priyank with us, as he is posted in Mumbai, Assistant Commissioner Income Tax. He was responsible for all the marketing and content design. In the beginning, Gulecha sir, after inaugurating the marketing tool, he just said, "Wah, kya baat hai, maza aa gaya." So sir, all credit goes to Priyank. He was always available and he has done excellent job in ensuring the digital marketing thing goes well. And definitely nothing is possible without administration support. So I would thank Anil sir and Vivek sir, who were always available at the JTF center, because we have made our studio there, which we have seen the video in the beginning. So they were always available. They used to go for quotation everywhere to tell us that which products are best, because it was our first time as well. So which product is best, which mic to choose, which smart panel to choose. Sometimes there were pretty small decisions which need a lot of effort in that. So thank you so much, sir. Manish ji and Saurabh ji are there, who manage the logistics at the Delhi center. So I would really appreciate them. So every night we have 1 hour to 2 hour straight up meeting updates since last 1 month. And they were the person responsible for this. And apart from that, every other coordination required. For the operations team, I would really thank Saroj sir. Saroj sir has around 20 years of experience with Shriram IAS, which itself is a brand institution. So we could not find anyone better and apt for the position than Saroj sir. He is our academic manager, right from the recruiting of the faculty to manage the whole schedule of the program, the test series, the content development, and each and everything. Now we have him as the academic manager. And for our online tool, we are using a front end, which is developed by Paresh Ji's team. He is the CEO, MICM. He is also based out of Mumbai. And the team has worked around 16 hours to 18 hours a day. We used to chat even at 1 o'clock in night, 12 o'clock in night, just to ensure that things go as per required. We have already done 2 testing rounds on 600 to 800 student strength with school students. And no work is possible without, a mental support, a strong motivation. So for that, we have our own Divijan sir. As you can read, he is the visionary and chief troubleshooter. He says, don't talk about problems. Problems are there many, just tell me the solution. Whatever you need is there available for you, just go and solve it. So don't talk about the problem, always talk about the solution. And as we know that when we do such kind of work in a little span of time,
So there are a lot of up and downs come. There are many disappointments. Many times there are anger, the time management and everything, because we all are serving government of India as well. So sometimes there's a time crunch, etc. But we have our own last but not definitely the least, Vinod ji. He's the friend, philosopher and guide of our team who was there with us to make us cheerful, and every time he is positive that chinta mat karo, sab ho jayega. We will do, don't worry. So these were the words which really motivated us a lot. And definitely it was really unprecedented for all of us, definitely for me. But thank you, sir, for putting your faith in me. And initially we thought that it is very difficult project, but I would end my presentation with these lines, that all things are difficult before they are easy. So before 3 months, it was a mammoth task. Today, it's like we are launching it today. So thank you so much, the team. Thank you so much, everyone. Thank you, JB sir and Vinod Bhaiya, for giving us this opportunity. Thank you. Thank you, नेहा जी. आज आपका ये रूप देख के आपके गुरु के चेहरे में भी हंसी आ गई थी. मैंने राजीव जैन साहब के चेहरे में हंसी देखी, रंजन सर के चेहरे में हंसी देखी. They are feeling proud of you that you have taken this mission ahead. Thank you, Neha ji. In this pandemic time, you and the whole team has created this, which will benefit it to millions and millions of students going forward. I request the person who works 8 hours a day for Jito, taken Jito to the new heights. He is a call away for every member. He has made available his life for the society, smallest function, and any work for Jito. He is there. Our dearest, our own, our beloved president, Sri Ganpat ji Chaudhary Sahab. जय जिनेंद्र. प्रभु श्री महावीर के चरणों में नतमस्तक वंदन. मेरी दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हमारे जेटीएफ चेयरमैन श्री पृथ्वीराज जी कोठारी को, श्री जेबी जैन साहब को, श्री पवन जी को, विनोद भाई को और उनकी पूरी मैनेजिंग कमेटी को, कि इन्होंने आज एक नया अध्याय, नया सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला अध्याय जेटीएफ के इतिहास में जोड़ा. मित्रों, हम सबको मालूम है कि जेटीएफ के बारे में काफी वक्ताओं ने बताया कब शुरुआत हुई, कैसे हुई, पर मैं हमेशा एक बात कहता हूं और आज भी कहूंगा, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और जो भी ऑफिस बेरर है, कि सेवा के काम में और जेटीएफ की ग्रोथ के बारे में आप संतोष हो गया, संतोष शब्द को नजदीक में मत लाना. जैसे ये अध्याय जोड़ा, ऐसे और भी अभी भी हमारी जर्नी बहुत लंबी है और जर्नी बहुत कंटिन्यू रखने की है. और जैसे अभी बताया राजीव साहब ने और डीसी जैन साहब ने कि कोरोना ने हमको क्या सिखाया. ये जो पैंडेमिक आया है ना, इसमें आपत्ति हुई है, तो आपत्ति के साथ में अपॉर्चुनिटी भी बहुत आई है. और उसको कैसे ये प्लेटफॉर्म का उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए, ज्यादा से ज्यादा समाज के प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए ले सकते हैं, उसकी आज ये शुभारंभ, ये ई लॉन्चिंग और ये ई प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है, उससे सबको लाभ मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है. हमारी एक और नई चीज, अभी हम लोग खुद की, हमारी जयपुर के अंदर में एक हॉस्टल जो पहले हमारी रेंटल प्रॉपर्टी थी, बहुत ही जल्दी, मे बी मोस्टली बाई 31 ऑफ दिसंबर हमारे जेटीएफ की ओन हॉस्टल जो अभी आकार और स्वरूप ले रही है, काम फुल फ्लैश चल रहा है. बाई दिसंबर वी विल हैव अवर ओन हॉस्टल इन Jaipur also. And similar, one more good news I would like to share at this good occasion is that कोटा में जो हमारी हॉस्टल है वो भी आज रेंटल प्रॉपर्टी है एंड उसकी कैपेसिटी सिर्फ 70 स्टूडेंट की है. बहुत जल्दी ही, क्योंकि हमने नाकोड़ा तीर्थ के साथ मिलके जितो एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं वहां पे, और वहां पे ऑलरेडी 2500 स्क्वायर मीटर जगह हमने गवर्नमेंट से परचेज कर लिया है. और बहुत जल्दी हमारा सपना है कि एक 400 से भी ज्यादा स्टूडेंट का हम आईआईटी कोटा में अपना खुद का हॉस्टल नाकोड़ा तीर्थ के साथ में जितो मिलके निर्माण करने जा रहे हैं. ये भी हमारा एक बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि कोटा में भी वही सिचुएशन है जो हमारी दिल्ली में सिचुएशन है, और जो स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी हम देना चाहते हैं वो रेडीमेड रेंटल प्रॉपर्टी में नहीं दे सकते हैं. तो मित्रों, मेरा इतना ही कहना है कि जेटीएफ ये जितो के हर परिवार का सपना है, हर परिवार के जहन में और हृदय में बसा हुआ सब्जेक्ट है. और इसके लिए आप लोगों को जो भी जरूरत हो, जितनी भी जरूरत हो, आज 15,000 से भी ज्यादा जितो परिवार के जो सदस्य है वो हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे, आज भी है और कल भी रहेंगे.
मैं जितनी अनुमोदना करूं आप लोगों की, जेटीएफ की टीम की, कि ये गत 2 सालों में जेटीएफ ने कई माइलस्टोन लिखे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं पहले काम नहीं हुआ, हमारे जितने भी अभी तक चेयरमैन आए, मैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको वंदन करता हूं, सबने बहुत अच्छा किया। पर ये हमेशा होता है, हर आने वाला चेयरमैन कुछ ना कुछ नया माइलस्टोन करता है। और ये जो हमारे पृथ्वीराज जी और जेबी जैन साहब की टीम है, इन्होंने पूरी टीम के साथ मिलकर कई नए माइलस्टोन किए। और उसमें एक माइलस्टोन ये भी था, जो हमारे डोनर ट्रस्टी है, जो पहले 120 हुआ करते थे, ये 2 साल के अंदर में ऑलमोस्ट 240 का फिगर हमने टच किया। ये बताता है कि समाज इतना प्रेम से और इतना दिल से, तन मन धन से ये प्रोजेक्ट के लिए और जितो में क्यों जुड़ रहा है, सिर्फ एंड सिर्फ विश्वास। क्योंकि इतना क्रेडिबिलिटी जितो ब्रांड ने अभी समाज के अंदर बनाया है कि कोई भी प्रोजेक्ट हम जितो या जेटीएफ या सर्वण आरोग्यम लेके आते हैं तो समाज हमारे साथ में तन मन धन से खड़ा रहता है। और यही विश्वास से इतने सारे पैसे डोनर मिले। आज इस मौके पर हमारे विशेष आमंत्रण को ध्यान में रखते हुए हमारे कई सारे मानवता मुख्य मेहमान और हमारे ही पार्ट में बोलूंगा मेहमान है और फैमिली मेंबर भी है, उन सबका बहुत जितो परिवार की ओर से मैं आभार मानना चाहूंगा। श्री रंजन जी जैन साहब का, श्री राजीव जी जैन, श्री डीसी जैन साहब, श्री पराग जी जैन, मिस्टर राजा बाठिया एंड डॉक्टर तनु जैन। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो ऑफिसर जेटीएफ के प्लेटफॉर्म से बने, आज वो लोग लीड कर रहे हैं हमारा ये लॉन्चिंग का और ये प्लेटफॉर्म बनाने का। और हम लोगों को इतना गर्व महसूस होता है कि जो ऑफिसर बने हैं वो ऑफिसर बनने के बाद में जेटीएफ और जितो परिवार को भूले नहीं है। और आज भी जब जब जेटीएफ से कोई आवाज आती है कि आपकी जरूरत है, तो ये यंग ऑफिसर फ्री, जैसे हमारे एल्डर ऑफिसर है, मेंटर है, उनकी तो बदौलत ये पूरी इमारत खड़ी है। अगर वो मेंटर आज जिसने डेडिकेटेड से काम कर रहे हैं और किया है, तभी ये रंजन सर, जैन साहब, जितने सब लोगों ने हमको जितना सपोर्ट किया, तभी ये जेटीएफ आज इस मुकाम पे पहुंचा है। और खुशी की बात है कि हमारी जो यंग ब्रिगेड है और जो नई सेना है हमारी ऑफिसर्स की, वो लोग भी जितो के साथ में इतना ही प्रेम से और इतना ही सद्भाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सारे मेंटर्स के सहयोग से, सारे यंग ऑफिसर्स के सहयोग से और सारे हमारे पैटर्न डोनर जितने भी हमको अभी तक मिले हैं और आगे भी मिलेंगे, उनकी ओर से सारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम हमेशा इस प्रोजेक्ट के ऊपर में पूरा ध्यान देंगे। और पूरा सबको, मैं जितने लोग जुड़े हैं उनका सबका मैं दिल से पूरा जितो परिवार की ओर से अभिवादन करता हूं, जय जिनेंद्र करता हूं और आपको धन्यवाद करता हूं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है पूरे जितो परिवार को कि सारे ऑफिसर्स का सपोर्ट दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करने के लिए जेटीएफ जितो को हमेशा आपका स्नेह मिलता रहा है, ऐसे ही आगे मिलता रहेगा। फिर से जेबी जैन साहब, पृथ्वीराज जी, पवन जी, विनोद जी, जितने भी हमारे ऑफिस बेरर है, मैं शायद किसी का नाम लेने में रह गया हो तो मैं मच्छामी दुगड़म करता हूं, पर आप लोगों को हार्दिक हार्दिक दिल से शुभकामनाएं और ढेर ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। थैंक यू गणपत भाई साहब। आप जैसा प्रेसिडेंट होते हैं तो काम करने में भी अलग आनंद आता है, एक नया माइलस्टोन खुद को ही लिखने में मजा आता है। थैंक यू गणपत भाई साहब फॉर ऑलवेज गाइडिंग अप एंड वी प्रॉमिस वी हैव बिकम लाइक जेटीएफ फैमिली। ये पूरी फैमिली और फैमिली के रूप में ही काम कर रहे हैं और सबको आनंद आ रहा है। वी रियली एंजॉयिंग इट। नाउ द पर्सन हु हैज गॉट ए लॉजिकल माइंड, बात करने की कला क्या शानदार है उनकी, वेरी कोऑपरेटिव, समाज का नहीं देश का कोई व्यक्ति उनके पास जाता है वो उसका हर काम उनके बेस्ट कैपेबिलिटीज में वो करते हैं। वैसे अपने आदरणीय श्री पराग जैन साहब। सबको जय जिनेंद्र। और सबसे पहले तो मैं टीम जेटीएफ स्पेशली पृथ्वीराज जी कोठारी, जेबी जैन, अरुणवाल अंकल, प्रदीप राठौड़, गणपत जी चौधरी, नरेंद्र जी बलदोटा और गुलेचा। और मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आज के प्लेटफॉर्म पे कुछ टाइम के लिए जैसे चिति भैया ने भी ज्वाइन किया था। और यहाँ पे जो मेरे सीनियर कलीग और मेरे कलीग्स हैं, रंजन जैन जिन जो कि एक रीढ़ की हड्डी की तरह जेटीएफ का काम करते हैं, राजीव जैन जिनका सपोर्ट ऑफ कोर्स रहा है, डीसी जैन जिनको मैं अपना गाइड और फिलोसफर भी कभी कभी मानता हूँ। वो ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात उनसे ग्रहण की। और मेरे कलीग राजा और तनु, यहाँ पे मैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है बनाया गया है ई स्वाध्याय का,
तो स्पेशली यहाँ पे मैंने देखा पार्टिसिपेंट्स में करीबन 250 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो कि अगले साल की तैयारी के लिए इस मंच से जुड़ेंगे भविष्य में। तो सबसे पहले तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि JTF में सिलेक्शन बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव है, ये आपने अनुभव कर ही लिया होगा। और JTF में सिलेक्शन इटसेल्फ इज ऐसा है जैसे मिनी UPSC आप लोगों ने पार कर लिया। तो जो एक आपका पहला कहते हैं माइलस्टोन था वो तो पूरा हो गया, उससे आपको पता चल गया कि आपकी कैपेबिलिटी है। आप थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, थोड़ा सा और मोटिवेट होकर के काम करेंगे इस डिफिकल्ट टाइम में, तो मुझे लगता है कि UPSC बहुत दूर नहीं, मैंने जो कहता है ना दिल्ली दूर नहीं। मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि आप इस स्पेशली डिफरेंट टाइम है, देयर इज अ न्यू नॉर्मल व्हिच एवरीबॉडी इज सेइंग, तो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को बना के रखें। कभी कभी क्षण ऐसे आएंगे कि आपको लगेगा कि डिमोटिवेट हो गए, इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतने सारे लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं, तो कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाता आदमी। तो मैं कहूंगा कि आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखें, और एक टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये मैंने देखा है कि अनलेस एंड अनटिल आपका टाइम, यू शुड बी मास्टर ऑफ योर टाइम, नॉट स्लेव ऑफ योर टाइम। तो उसके लिए एक टेक्निक है जो मैं 96 बैच का हूं, तो 95 में जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे को किसी ने ये सलाह दी कि भाई टाइम को जो मैनेज करना है, उसको टाइम को मैनेज करने के लिए स्टॉप वॉच के माध्यम से आप टाइम को मैनेज करें। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितना प्रोडक्टिविटी दे रहे हैं, वो स्टॉप वॉच से पता चल जाता। नहीं तो मैंने देखा है ऐसे टाइम पे ऐसा लगता है आदमी को कि मैंने 16 घंटा पढ़ लिया, 18 घंटा पढ़ लिया, बल्कि वास्तव में जब आप स्टॉप वॉच करके देखेंगे तो लगेगा शायद 2/3 ही पढ़े या 80% ही पढ़े। तो मेरी सबको सलाह है कि स्टॉप वॉच के माध्यम से वो अपने टाइम मैनेज करें। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि कोविड का टाइम है, ई स्वाध्याय के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आपकी ट्रेनिंग हो रही है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जो आसपास के लोग हैं, अगर वो कोशिश हो तो मिलें भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, और जो आपने पढ़ा है आप उससे डिस्कस करेंगे तो जो उसका इम्पैक्ट होगा, जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा नॉलेज का, वो बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि ये जो पेपर है UPSC का, वो 99% परस्पिरेशन है, 1% इंस्पिरेशन है। तो देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो शॉर्टकट देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की टू दिस पेपर। और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक किताब है जो कि बहुत फेमस हुई, बाद में उसकी एक मूवी भी बनी, उसका नाम है द सीक्रेट, वो देखें, छोटी सी मूवी है। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मूवी का वो ये कि यू बिकम व्हाट यू थिंक, सो स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर नंबर 1 ऑल इंडिया UPSC, स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट एंड यू वुड बिकम। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि ये जो नाम रखा स्वाध्याय, ये सोच समझ के रखा नाम है, इसके लिए भी मुझे लगता है JTF की जो टीम है वो बधाई का पात्र है। क्योंकि हमारे इसमें ये जो अभी तो ई स्वाध्याय बोल रहे हैं, तो ये जो जर्नी है ये स्वाध्याय की ही जर्नी है। ये अभी हम बाहर की तरफ की जर्नी कर रहे हैं, हम बाहर का जो शासन है उसकी जर्नी कर रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये जो हमारी जर्नी है वो अंदर की जर्नी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो ई स्वाध्याय है, ये ई स्वाध्याय को स्वाध्याय में कन्वर्ट करें, कम से कम नहीं भी तो 15 मिनट स्वाध्याय करें घर में। इतने जो महावीर की जो फिलॉसफी है वो अद्भुत है, अद्भुत। और मेडिटेट करें। आपने जो ये मेडिटेशन है सिर्फ आपको आध्यात्मिकता की तरफ ही नहीं ले जाएगा, बल्कि जो आपने पढ़ा है उसको भी आप मेडिटेट करेंगे तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो आप पढ़ते हो वो अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते तो उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। नॉलेज शुड कन्वर्ट टू विजडम, और वो सिर्फ मेडिटेशन के माध्यम से हो सकता है। तो मेरी सबको ये सलाह है कि मेडिटेट करें। जो आपकी जर्नी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुरू हुई है, इस स्वाध्याय के माध्यम से शुरू हुई है, वो अंदर की तरफ की जो स्वाध्याय है वो शुरू हो। ये बात कह के मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ, और मन लगा के पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें। कभी कोई भी डाउट हो, अब जैसे DC जैन सर ने कहा कि वो दिल्ली शिफ्ट हो गए ऑलरेडी, तो वो खुद एक बहुत बड़े मेंटर हैं। रंजन साहब तो ऑफ कोर्स हैं ही, राजीव जैन साहब भी वहां पर हैं। और कभी भी आपको जरूरत पड़े तो JB जैन साहब का जब भी आदेश होता है, तो चाहे उनका सिलेक्शन प्रोसीजर हो या मॉक इंटरव्यू हो, मैं हमेशा इस काम के लिए तत्पर हाजिर रहता हूँ। तो जो भी आज्ञा होगी तो मैं उसके लिए बाधित हूँ, और मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र। थैंक यू पराग सर। आपका गाइडेंस ना केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हम लोग सबके लिए भी फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद। Now, the person who has got remarkable impact
on encouraging and informing the JTF students about effectiveness of civil services through his seminars, events, and mock interviews. Whenever he comes to Delhi to visit his home, but trust me, he visits first center first, then he goes to his home. That much he loves JTF. He's like an elder brother to all the JTF students and solve their smallest issues. He is their call away for any person. राजा जी, इनकी पर्सनालिटी और बोलने की कला में इतना वजन है और साथ में जैन दर्शन में उनकी पकड़ अद्वितीय है. मैं पर्सनली उनको कई बार सुना हूं. आई एम रियली फैन ऑफ हिज स्पीक. फिल्मी डायलॉग हो या साहित्य पर उनका गजब कंट्रोल है. सच में ये विचारों के भी राजा हैं. आवर ओन राजा जी भाटिया. थैंक यू सो मच विनोद भैया फॉर द काइंड वर्ड्स और ये इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम thankful to JATF because I am a product of JATF. तो JATF ने ही मुझे जो मैं हूँ मेरे को बनाया है. साल 2011, 12, 13 3 साल का मेरा JATF का स्टे था. उसमें सब जो सीनियर ऑफिसर्स और सब लोगों से इंटरेक्शन हुआ. तो इसीलिए JATF के लिए तो हम लोग हमेशा ही वो मन में एक वो भावना तो है कि JATF ने हमें जिस मुकाम पे पहुंचाया है उस मुकाम पे हम JATF का साथ दें और भी कई लोगों को उस रास्ते पे लेके जाएं और उस मुकाम तक लेके जाएं. तो और इसीलिए आज मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय रंजन सर जो कि उस टाइम भी हमारे मेंटर थे और आज भी एज अ मेंटर फिगर हैं, राजीव सर, डीसी जैन सर, पराग सर, डॉक्टर तनु, और इसके अलावा JATF और जीटो के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, स्पेशली जेबी जैन सर, बिकॉज जेबी जैन सर के साथ तो डे 1 से हम लोगों का इंटरेक्शन और साथ और गाइडेंस और बहुत बार किसी इश्यूज पे डिबेट भी हुई है, बट स्टिल ही इज लाइक अ फादर फिगर फॉर JATF. एंड विनोद भैया एंड पृथ्वीराज जी कोठारी, बाकी सारे जो ऑफिस बेयरर्स और ट्रस्टीज यहाँ पे मौजूद है, आप सबको और जो भी पार्टिसिपेंट्स भी हैं इस वीडियो कॉल के अंदर, उन सबको मेरा सादर जय जिनेंद्र. और ये JATF ने एक बहुत ही बड़ा एक नया कदम, एक नए आयाम में एक कदम रखा है. ई स्वाध्याय ये प्लेटफॉर्म जो इन्होंने स्टार्ट किया है, ये एक अलग ही दिशा इस तरह इस फील्ड के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसे एक अलग ही दिशा, एक अलग ही मार्ग देगा और उससे कई लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा होगा. जैन जैसा कि हमारे जैन शास्त्रों में तत्वार्थ अधिगम सूत्र है, उसके अंदर एक शब्द आता है परस्परोपग्रहो जीवानाम. संसार के जितने जीव हैं सभी एक दूसरे के सहयोग करके ही टिक सकते हैं, रह सकते हैं. तो ये जो JATF का ये जो प्लेटफॉर्म है और JATF एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस कोट कि इसको कैसे जिया जा रहा है. जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग इसके अंदर गाइडेंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, अपना समय, श्रम, अपना नॉलेज सब कुछ शेयर कर रहे हैं. जो ट्रस्टीज हैं वो भी अपना समय, श्रम और अपना आर्थिक सहयोग इसके अंदर प्रदान कर रहे हैं. जो बच्चे हैं वो मेहनत कर रहे हैं. जो JATF की वहाँ पे संस्था की जो मैनेजमेंट टीम है वो लोग दिन रात, अनिल सर हैं, ये सब लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं और हर टाइम तत्पर हैं बच्चों के जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके सहयोग के लिए. इस स्वाध्याय के पीछे जो हमारी कोर टीम है, नेहा जी, ये सब लोग जो इसके अंदर पूरा काम कर रहे हैं, पूरे जुड़े हुए हैं. तो इन सब के सहयोग से, इन सब के आपस में जो मिश्रण हुआ है, सब जो मिला है, उसके बाद एक ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है जो कि जैन दर्शन का हमारा जो लोगो भी है उसके नीचे भी यही सूत्र लिखा है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम. सभी जीव एक दूसरे का सहयोग करके ही जी सकते हैं और विश्वास और सहयोग के बल पे ही संसार चलता है. और इससे बढ़िया उदाहरण और क्या होगा. तो ये जो हमने ई स्वाध्याय प्लेटफॉर्म जो JATF ने लॉन्च किया है इस कोरोना काल के अंदर, ये जो इनोवेशन किया है, ये एक सिस्टम ही बदलने वाला है. और ये जो आपके भी बहुत लोग बोल चुके हैं कि जो लोग दिल्ली भी नहीं आ सकते या जिनको कुछ इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, वो भी इससे फायदा उठाएंगे और एक बृहद स्तर के ऊपर इससे सब लोग फायदा उठाएंगे. तो ये एक बहुत ही अच्छा काम ये एक होने जा रहा है. कुछ समय पहले आदरणीय तेजराज जी गुलेछा ने ये कहा था कि जैन समाज वापस महाजन, एक वो पद जो है जो उनको पहले भी था, वापस उसी ओर जा रहा है. तो महाजन के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होती है. संस्कृत में कहा है महाजनो येन गतः स पंथा. महाजन जिस तरफ जाते हैं उसी को लोग पथ मान के चलने लगते हैं. तो हम लोगों को क्वालिटी और इसके अंदर एक जो स्टैंडर्ड है वो इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ये सब लोग इसकी ओर देख सके और महाजन जिस रास्ते पे जाते सब उसी रास्ते पे जाएंगे. तो हम लोगों को एक परफेक्ट एग्जांपल भी क्रिएट करना पड़ेगा इसके लिए. और आई एम श्योर कि जो आज हमारे पास टीम है और यंग एनर्जेटिक विनोद भैया भी इसके साथ मौजूद हैं और उनका सपोर्ट भी यहाँ पे है, तो आई एम श्योर कि इसके अंदर क्वालिटी और स्टैंडर्ड तो दिन प्रतिदिन बहुत अच्छा होता जाएगा ही.
और अगेन माय बेस्ट विशेस और हार्टफेल्ट कांग्रेचुलेशंस। जेएटीएफ को तो बेस्ट विशेस देना का क्या है, हमारी अल्मा मेटर जैसा ही है, तो कोई अपने अल्मा मेटर या अपने माता पिता या अपने परिवार को तो बेस्ट विशेस या थैंक्स क्या ही देना, उसके लिए तो हम लोग भी तत्पर हैं और हर तन मन धन जिस भी तरीके से हम लोग इस आपके इस महान आयोजन के अंदर हम लोग जुड़ पाए, सहयोग दे पाएंगे, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी ही भी होगी और एक संतुष्टि भी होगी कि हमें अगर कुछ मिला है तो हम भी वापस दे रहे हैं और ऋण जो है वो उसको बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिया ही लिया और कुछ दिया नहीं, और एक अंदर से एक संतुष्टि और एक खुशी होगी। एंड जो भी कैंडिडेट्स इसके अंदर भाग लेंगे उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस है। आप लोग पूरी मेहनत और एकाग्रता और फोकस के साथ इस पे तैयारी कीजिए और बिल्कुल नेगेटिविटी सारी जो है उसको छोड़ के कि हम कर सकते नहीं कर सकते, ऐसी मानसिक निर्बलताओं को छोड़ के आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम कर सकते हैं। पराग सर ने भी कहा कि अगर आप जो सोचें आप वही बन जाते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा वी बिकम व्हाट वी थिंक। तो हम लोगों को पॉजिटिव ही सोचना ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं 11th क्लास में था तब मैंने इंजीनियरिंग साइंस चूज किया था। उस टाइम साइंस के फॉर्मूले, फिजिक्स मैथ्स के फॉर्मूलेज देख के मेरे को लगता था मेरे से तो आईआईटी होगी नहीं, और उस भय के चलते चलते मेरे से आईआईटी एट द एंड हुई भी नहीं। लेकिन सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इट इज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, ऐसा लोग कहते हैं। और डे 1 से मेरे को लगा कि ये एग्जाम मैं क्लियर कर लूंगा, और उसी पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ मैंने इसमें तैयारी भी शुरू की। और आप अगर पॉजिटिव माइंड सेट से हम रहते हैं तो हमको रास्ता भी मिलता है। और सिविल सर्विसेज के अंदर मैंने 5 अटेम्प्ट दिए थे, एंड नॉट टू बोस्ट बट 5 में से मैंने 4 अटेम्प्ट क्लियर किए थे। 4 अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। तो ओनली थिंग, मतलब मेरा पॉइंट यही है कि हम लोग अगर पॉजिटिव सोच के हम लोग सोचें कि हाँ हम क्लियर कर सकते हैं, और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोच के सॉल्यूशंस के बारे में सोच के उस और बढ़ते जाएंगे, तो हम डेफिनेटली एग्जाम भी क्लियर करेंगे। और ये जो ई स्वाध्याय का प्लेटफॉर्म है ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा ही। जेएटीएफ में भी हम कहाँ से कहाँ आ गए। कोई टाइम था जब 1-2 सिलेक्शन होने पे भी हमें खुशी होती थी, अब इतना ज्यादा सिलेक्शन हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड इससे समाज के अंदर भी लोगों में एक चेतना हो रही है कि हाँ ये भी एक करियर एस्पेक्ट है, सिर्फ सीए एमबीए ही एक करियर नहीं है, दिस इज ऑल्सो करियर एंड इट इज अचीवेबल ऑल्सो। पहले सबको ये लगता था कि इसके अंदर तो बहुत रिजर्वेशंस हैं, ये हैं वो हैं, रिश्वत चलती है, ये भी एक बात होती थी पहले। लेकिन यूपीएससी के अंदर सिलेक्शन होने के बाद और देखने के बाद मैं कह सकता हूँ बिल्कुल 100% टोटली फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड मोस्ट एथिकल प्रोसेस है। तो समाज के अंदर भी एक ये भ्रांति जो थी कि इसमें तो हम नहीं जा सकते, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, वो नहीं है, ये इसमें हम लोग आ सकते हैं। बहुत लोग आए हैं, उनको देख के समाज में और भी लोगों को प्रेरणा मिल रही है, मिलेगी, और भी कई लोग इसके अंदर आएंगे। और जैसे इतिहास ने जैन समाज ने भारत में वस्तुपाल, तेजपाल, जगड़ू शाह और ऐसे कई महान आदमी शासन को दिए हैं, भविष्य में भी ऐसे लोग हम लोगों को मिलेंगे, आज भी हैं, भविष्य में भी मिलेंगे, और इनकी संख्या बढ़ती ही जाएगी। और ऐसी मेरी सबके जेएटीएफ परिवार को सबको शुभकामना एंड बेस्ट विशेज। आपका ये मिशन जो है वो सक्सेसफुल हो, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। और हम हर पल आपके साथ हैं, कभी भी कुछ भी हो, नॉट ओनली ई स्वाध्याय, और भी किसी जगह आपको हमारी कुछ भी सेवा की जरूरत हो, हम सदैव तत्पर हैं, उपस्थित हैं। जय जिनेंद्र। राजा भाई, वी टेक यू एज ग्रांटेड कि आप ही नहीं, सभी जेटीएफ के जितने लोग हैं, आप लोग जितने भी जन पास हुए और नहीं पास हुए, हम लोग आपको ग्रांटेड में ले रहे हैं कि यू आर विद अस, और उसी बेस पे ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है ताकि देश की सेवा कर सके। वी आर नॉट एंडिंग योर स्पीच नाउ, वी वांट 4 लाइन आप देश के लिए कुछ सुनाएं, उसके बाद आपका वक्तव्य शेष होएगा। राजा भाई अगेन। देश के लिए which you always stick and make a blood high। देश के लिए तो एक ही लाइन है जो मैं हर टाइम सोचता रहता हूँ और जो मेरे मन में भी है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। 4 लाइन तो नहीं विनोद भैया, 2 लाइन ही है, बट हाँ यही लाइन है जो पहले भी मेरे को प्रेरित करती थी और आज भी प्रेरित करती है। चाहे, और इट इज नॉट ओनली अबाउट देश, इसके अंदर तो मतलब मैं तो जैसे बीकानेर से ही हूँ, आप भी देशनोक से ही हैं, तो बीकानेर, राजस्थान, भारत और पूरे विश्व के लिए सबसे हम लेते ही लेते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, कि देश में चेंज कर दो, शहर हमें देता है सब कुछ, समाज हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यही लाइन एक मोटिवेट करती है। पहले कभी मैंने एक जगह पढ़ी थी और आज भी मैं ये लाइन, जब भी ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूं, बहुत बार ऐसे डाउन फील होता है ना आपको पब्लिक सर्विस के अंदर कि आप सब कुछ कर रहे हैं बट स्टिल यू आर गेटिंग क्रिटिसिज्म, या आपको जो लगता है कि आपका ड्यू आपको नहीं मिलता है, बट देन जब ये लाइन याद आती है तो आपको लगता है आपको जितना ड्यू से आपको बहुत ज्यादा मिल चुका है ऑलरेडी। थैंक यू। थैंक यू राजा भाई। क्रिटिसिज्म होना मतलब अपने अच्छे काम कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। ग्रेट गोइंग।
अब मैं उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जो इतनी कम उम्र में 2 यूपीएससी की किताब लिख चुकी है, ऑलवेज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट जेटीएफ की। कोई भी कमिटी में कोई भी डेवलपमेंट का काम हो, शी इज ऑलवेज रेडी। पर्सन विथ हर स्माइल इंस्पायर ऑल यंग माइंड्स। I've seen her giving her lectures personally in the center. How students are focused when she gives her lectures. She makes things so simple, so enlightened. Always love to hear her. Our own Dr. Tanu Jain. सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं जेएटीएफ मैनेजमेंट, ऑफिस बियरर्स, जेबी जैन सर और विनोद भैया, रंजन सर, अनिल सर, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ये डेवलप करा, इस तरफ की सोच लगी, इस तरह की सोच उन्होंने रखी। मेरा हमेशा से मानना रहा है एक व्यक्ति और समाज की जो सक्सेस है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितनी जल्दी समय के साथ अपने आप को चेंज कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है। और आज जिस तरीके से जीतो और जेएटीएफ ने डिजिटल ईरा के अंदर, डिजिटल समय जो चल रहा है उसके अंदर एकदम से ई स्वाध्याय लाकर जो अपने आप को समय के साथ रखा है, समय के साथ चलना जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी रेलेवेंस और अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। और एक ये भी बात है कि ऐसा हमेशा होता है कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो सभी सोचते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने और अपने परिवार के लिए ना सोचता हो। लेकिन जब जीतो और जेएटीएफ समाज के लिए सोच रहे थे तब वो श्रेष्ठ थे, लेकिन आज जब वो समाज, राष्ट्र और आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं तो वो वंदनीय हो गए हैं। उनकी वंदना होनी चाहिए, क्योंकि किसी दूसरे के लिए आप इतना सोचें, इतना आपने भावना रखी, आपने मेहनत करी, आप आगे बढ़े। बहुत एक मुश्किल कार्य है ये, अपने से ऊपर बढ़ के सोचना। कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय प्रवृत्ति आपके अंदर है, तभी आप दूसरे के बारे में सोच पाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए किया, उन्होंने नई पीढ़ी को जो इंस्पिरेशन दे दी अपने अच्छे कार्य से, अपने जो लगन से लगे हुए। जैसे जेबी जैन सर जब आते हैं और सेंटर पे बैठते हैं, या विनोद भैया जो दिन रात इतने समय से लगे हुए हैं, नेहा, सौरभ, प्रियांक, इन लोगों ने जो ये पूरा ई स्वाध्याय बनाया अपने समय निकाल कर अपनी मेहनत से, तो ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है आने वाली पीढ़ी के लिए। जैसा राजा जी ने कहा, सिर्फ लेना नहीं देना भी सीखें। तो ये बड़ों से ही इंस्पिरेशन मिलके आज हम लोग सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद हमसे आगे आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी। और इसी के साथ जेएटीएफ, जीतो, ई स्वाध्याय की टीम ने जिस तरह से मेहनत करी है उसकी सराहना शब्दों में तो हो नहीं सकती। सिर्फ कभी अपने कार्य से अगर हम कभी आपके काम आ पाए तो उसी से ही हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू तनु जी। बट ये आपका भी खत्म नहीं होता। 4 पंक्तियां, जैसे मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 4 पंक्तियां सुनाएं। भैया, विनोद भैया, आप हमेशा थैंक यू सो मच। मैंने एक भैया ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ऐसा मैं आपको बोलने के लिए बोलूंगा, तो एक छोटा सा मैंने लिखा है। और ये जेटीएफ और उनकी टीम जिन्होंने इतनी मेहनत करी, और साथ साथ बच्चों के लिए भी है कि बनना है अगर कुंदन तो तुझको तपना होगा, बनना है अगर कुंदन तो तुझको तपना होगा, है अगर सूरज बनने की अभिलाषा तो तुझको जलना होगा, पाना हो यदि गुरुत्व तो तुझको आकार में ढलना होगा, यूं ही मान सम्मान किसी को मिलता नहीं, यूं ही मान सम्मान किसी को मिलता नहीं, गिरते का सहारा तो तुझको बनना होगा, हो एकलव्य सी मंशा जो तुझमें तो मिट्टी में भी द्रोण मिल जाएंगे, हो सीखने की ललक तो द्वार ज्ञान के खुल जाएंगे, है कठिन ये राह पर मंजिल के लिए तो चलना होगा, बनना है अगर कुंदन तो तुझको तपना होगा, है सूरज बनने की अभिलाषा तो तुझको जलना होगा। थैंक यू सो मच। आप सब सूरज की तरह जले, कुंदन की तरह तपे, तब जाके आज हम सब यहाँ पहुंचे और आगे आने वाली पीढ़ियां भी कुछ ऐसा करें। थैंक यू सो मच। तनु जी, मैंने इसलिए बोला आपको ये बोलने के लिए कि आज सारे जेटीएफ पैटर्न्स यहाँ पे हैं, जीतो के पैटर्न्स यहाँ पे हैं, उनके फाउंडर्स यहाँ पे हैं। उनको कितनी खुशी होगी जब अपने परिवार के ही लोग को सुनने में इतना आनंद आ रहा होगा। इसीलिए मैंने आपको राजा भाई और आपको वापस बोला। बाकी तो सीनियर्स हैं, मैं उनको कितने भी बोलूं बट उनको तो वो लोग सुनते ही। पर आपने इस संस्था से तैयार हुआ। वी फील प्राउड दैट यू आर पार्ट ऑफ फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली। वी लव यू ऑल। थैंक यू वंस अगेन। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आवर ओन
सेक्रेटरी जनरल पवन जी जैन साहब से कि वोट ऑफ थैंक्स दें, और उसके बाद नेशनल एंथम, एंड वी एंड दिस इवेंट। एंड थैंक यू ऑल जो आप लोग ने इतना साथ दिया, संडे के दिन आपने टाइम निकाला हम लोग के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो आई रिक्वेस्ट सौरभ जी जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग एवरीवन। On behalf of Team E Swadhyay and Team JTF, we are sincerely thankful to our Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal Nishank sir. Sir, your words will become a guiding force for us, and we will definitely try to make our country and our community proud in future. So we also thank you all the esteemed members, officers who have graced the occasion with their presence, and they gave us their kind words of appreciation and wisdom. Shri Ranjan Jain sir, he is a mentor to all of us. Shri Rajiv Jain sir, Shri DC Jain sir, Shri Parag sir, Shri Raja Banthia sir, and Dr. Tanujan ma'am, and all the other officers who found time from their tight schedule to attend this event. We are very, very thankful to all of you. Sir, as rightly pointed out by you, Team E Swadhyay and its vision is another fruit of JITO and JTF. And on this occasion, I would like to thank all the esteemed dignitaries of JTF and JITO for constantly motivating us, for encouraging us, and helping us with their vision and with their words of wisdom. Shri Prithviraj Kothari sir, Shri Subhash ji Randwal sir, Shri Naren ji Baldota sir, Shri Tejraj ji Gulecha sir, Shri Pradeep Rathore sir, and JITO President Shri Ganpat Raj Chaudhary sir. In the end, I would like to thank all the people who have been tuned with us for past 1.5 hours, who have been watching us on Facebook, YouTube, and through this online meeting. And we will definitely make you proud and collectively make this world a better place to live. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Thank you very much. Request everybody to join for national anthem, please. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय। Thank you, Jai Hind. Thank you. See you all.